हाँ जी। चलिए, हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। हमारा इसको सॉल्व कर लेंगे ना, सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंपल हमारा आ जाएगा 8x³ माइनस 9x² प्लस 16x माइनस 12। ठीक है। Let us do few more questions related with this rule of product rule. Suppose dy by dx, I am interested to calculate for 3x² minus 4x plus 9 and multiplication of 4x³ minus 3x² plus 3. Again, this is a multiplication. We will go for the product rule. Now, dy by dx would be, keep the first term as the same. Function हमने same रखा, d by dx of the second plus keeping the same and then d by dx of the first one. सॉल्व कर लो उसको, सिंप्लीफिकेशन है सिंपल। dy by dx में 4 हमने अभी किया ही था। Whatever is in the power, we will bring it out and the constant would be 4 and it would be 4 3 is 12, x power 3 minus 1 is 2 minus 3 2 is 6, x power 1 and it would be 0 plus whatever was there in the term, we will keep it like it. And then d by dx of it, 3 2 6, 3 to the 6, x power 2 minus 1 is 1 minus 4, 1 the 1 and x power 1, 1 minus 1 is 0 and someone's power 0 is 1 over done. Right? Now you can simplify it and we can get the answer. Now it's a simple simplification. 3x² को इससे multiply and then इससे like this and you can solve it. Then go for the next question. Suppose now I'm interested to know about d by dx of x² minus 3x plus 7 as well as of 2x² plus 5x plus 9. Suppose we are solving it. Again, this is a multiplication of the two numbers. Same product rule, keeping the first term as it is and differentiating the second. मैं सिर्फ डिफरेंशिएशन तक सॉल्व कर रही हूँ एंड देन सिंप्लीफिकेशन आप कर लेना. Plus 5x plus 9 d by dx x² minus 3x plus 7. Keeping the first term same, differentiate to the 4x plus 5 plus keeping the second term as it is, differentiating it 2x minus 3. Now simplify x² multiply by 4x. So like that you can simplify it. Easy. This was the question number 31. Okay. Let's start with the next rule. Solve कर लेना इसको, simplify है इसको. Come to the rule 7. Quotient rule. We have done कि हमारा प्लस में था, सम था, डिफरेंस था, दो वेक्टर्स में हमने कर लिया, प्रोडक्ट था, we know. Now when we have the quotient rule, quotient when they are in the division, suppose we want to know about the d by dx of two functions of x upon g upon x. They are in quotient. They are in division. What we do, whatever is there in the numerator and denominator. First of all, we will take the denominator as it is and we will differentiate the numerator. इस वाली टर्म को न्यूमरेटर बोलते हैं जो ऊपर है, नीचे डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को ऐसे लिखा कि न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट. नाउ विल पुट द साइन माइनस. प्रोडक्ट में हम सिंपल चल रहे थे, प्लस लगा रहे थे. इन दिस नाउ जो भी हमारा न्यूमरेटर में था
d by dx into denominator. Sorry. Now whatever is there in the denominator, simply हम उसको square कर देते हैं. That is a quotient rule. Let me repeat. जो denominator में था, write the denominator, differentiate the numerator, put the subtraction mark, subtract it, and write the numerator as it is, and differentiate the denominator, then divide it and keep the denominator and whole square. Now, let's do some questions. We have done 31 questions. Now do the 32nd. Suppose 3x square plus 2x plus 1. 3x minus 1. ठीक है? We can do it easily. Now it's a division में है दोनों terms. What we will do? We will do the dy by dx. We are interested to know about the d by dx of it. Then whatever is there in the denominator, keep it like this, dx minus 1. And we will differentiate the numerator. Minus, keep the thing whatever is the function. And differentiate the denominator minus 1, right? And then divide the entire 3x minus 1 whole square. यहाँ तक क्लियर है? दोबारा से देख लो. डिनोमिनेटर को हमने ऐसे लिखा, न्यूमरेटर में जो था, डिनोमिनेटर में जो था उसको हमने यहाँ लिख दिया. न्यूमरेटर को we differentiated and then keep the numerator as it is and then differentiated the denominator and square. ठीक है जी? Now ये as it is आएगा 3x minus 1. इसको डिफरेंशिएट करेंगे. 3 2 is 6x plus 2 minus 3x square plus 2x plus 1. Here it would be 3, which we differentiate and we get 3x minus 1 whole square. We can simplify it. You want me to simplify or you can simplify? मैं कर देती हूँ एक क्वेश्चन, फिर बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं. इसको नहीं तो अपने आप सॉल्व कर लेना. स्क्वायर it will come out 9x square is 5. ठीक है जी. चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. 33. 1 upon x minus 1. You want to differentiate it with respect to x, है ना? अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है इसके अंदर, फिर क्वेश्चन रूल लग गया. डिनोमिनेटर को एज इट इज dy by dx हम ऐसे ले लेते हैं, -1 d by dx न्यूमरेटर वाले का minus 2x plus 1 d by dx x minus 1. x माइनस जो भी न्यूमरेटर में है उसका स्क्वायर. ठीक है जी. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. x minus 1 करेंगे तो 2 आ गया, 1 हो गया तो 0 माइनस ये 2x plus 1. इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा 1 आ गया. x minus 1 का होल स्क्वायर. सॉल्व कर लो. सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा 2x minus 2 minus 2x minus 1 x minus 1 होल स्क्वायर माइनस ये तो कट जाएगा
-3 अपॉन x-1 होल स्क्वायर। क्लियर? अब नाउ 34। Some questions. 34. X cube minus x square plus 1 upon x square plus 1 dy by dx of it. Again, quotient rule. पहले x square plus 1 को as it is, d by dx x cube minus x square plus 1 minus x cube minus x square plus 1, differentiate the denominator term, स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर ले लिया आपने। ठीक है, सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई, पहले डिफरेंशिएट कर लो। ये एक्स क्यूब है तो ये आ जाएगा 3x² इधर ही माइनस, ये 2x आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम वही डिफरेंशिएशन में रूल्स जो भी ऊपर करें वही लगा रहे हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सबको मल्टीप्लाई करके and then you will get the simplification. I think you will be able to do the simplification now. है ना? Let's go for the next rule. जो एक important rule है, rule 8, which is a chain rule. Chain rule ये कहता है, अगर y equals to f u है ना, function of u है, and u is the function of x. अगर ऐसा केस है, in that case dy upon dx निकालना है, तो आप क्या करो, dy upon du मल्टीप्लाई बाय du अपॉन dx, क्योंकि du कट गया तो ये dy अपॉन dx ही आ गया, राइट? जस्ट अंडरस्टैंड बाय द सम क्वेश्चन से 34 लिया था ना, ठीक है। 35 y equals to u square is given and u is given 2x power 3 plus 5x plus 1, and now they are asking you to calculate dy upon dx क्या है ना, dy upon dx। हमें y तो u में गिवन है और u x में गिवन है। In that case, we can say dy by dx, we can write dy upon du into du upon dx। मैं कर सकती हूँ d upon du में y के जगह u स्क्वायर लिख दो, इस y के जगह ये वाला वैल्यू लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई d upon dx, और इस u के जगह आई विल राइट दिस वैल्यू 2x³ प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, यहां तक लिया। मैंने सिंपल dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx किया क्योंकि चेन रूल कह रहा है मेरा, और y के जगह वैल्यू जो गिवन है u स्क्वायर वो रख दी और u के जगह x के टर्म्स की रख दी। नाउ आई एम सॉल्विंग इट, dy अपॉन dx कितना आया, अब हम इसके टर्म में u है तो यहाँ पे 2 बाहर आ गया, u 2 माइनस 1 इज 1, ये हो गया 2u, मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशिएट करते हैं, ये 2 है ये 3, 3 2 जा 6, x 3 माइनस 1 इज 2, x पावर 2 प्लस 5, सिंपल। अब बस क्या करना है, u की जगह dy बाई डी एक्स है तो हमारे को चीजें x के टर्म्स में चाहिए, तो u की वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं, 2 2 u के जगह लिख सकते हैं 2x³ प्लस 5x प्लस 1, ये वाली वैल्यू, ठीक है, वो यहाँ मैंने यहाँ लिखी है। इधर आप बच गया मेरा 6x² प्लस 5, दिस इज माई आंसर। ठीक है जी, सिंपल है। अभी हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 36 में अगर हम कहते हैं y इक्वल्स टू
रूट यू एंड u इक्वल्स टू 5 प्लस 7x प्लस x पावर 3। ठीक है। अब dy बाई डी एक्स, dy अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, क्योंकि u के फॉर्म में गिवन है। मैं ऐसे लिख सकती हूँ डी अपॉन डी यू, वाई की जगह लिख देती हूँ रूट यू मल्टीप्लाई डी अपॉन डी एक्स और u की जगह 5 प्लस 7x प्लस एक्स पावर क्यूब। अब हम सॉल्व कर लेंगे डी वाई बाई डी एक्स। इसके लिए रूट है ये हमारा, मीन्स हाफ, है ना। इसको आप सॉल्व कर लोगे सिंपल, जैसे मैंने अभी आपको कराया है। इसको आप सिंपल लिख सकते हो, क्योंकि आपके यू की मैंने अभी पूरा कराया था ना। इसको अलग से डी बाई डी एक्स करके देख लो। 1/2 है, हाफ आ गया, हाफ माइनस 1 यू माइनस हाफ। ठीक है, ये आ गया, आपने इसको लिख लिया हाफ यू माइनस 1/2। इधर के लिए मल्टीप्लाई एक्स 5 के लिए 0, 7x में 7 प्लस इधर 3 है 3 और x पावर स्क्वायर। ये सिंपल हाफ इन प्लेस ऑफ you can write like this 1 upon u 7 plus 3x square, or we can write 7 plus 3x square upon 2, and in place of you can write 5 plus 7x plus x cube. In this way also you can write this is the answer। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग है, हम चाहे इसको रिप्लेस करें और करें, वरना एक फंक्शन अगर कोई पावर में आता है ना, उसके लिए एक आपका फंक्शन और होता है, रूल कह लो फंक्शन कह लो, डी बाई डी एक्स का रूल ही मान लो एफ एक्स है। ये भी पावर में है एन में, कोई फंक्शन है वो पावर में, तो उसको कैसे सॉल्व करो, पहले तो सिंपल एन बाहर आ जाएगा क्योंकि हमारा रूल कह रहा है। इसको हम मान के चल रहे यू, है ना पूरा, अगर हमारा ये यू है तो एन बाहर आ गया, और इधर क्या बचा मेरा फंक्शन, जो भी मेरा फंक्शन होगा एफ एक्स उसको कर देना n-1। फिर क्या होता है, हम अगेन भी डिफ्रेंशिएट, जो भी फंक्शन होता है उसको डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, ये हमारा एक रूल है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पैटर्न पे। हमने किया था 36, अब हम कर लेते हैं 37। चलिए, हम ले रहे हैं x+3 अपॉन x-4 पावर 3, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। एक तरीका तो मेरा यही है कि मैं इसकी वैल्यू u मान के चल लूं, इसको अलग अलग करके कर लूं कि u है, फिर उसको पावर 3, इसको मैं चेन रूल लगा दूं। अदरवाइज हमारा कुछ चीज पावर में तो हमें फंक्शन दिख रहा है, एक फंक्शन हमारा x+3 डिवाइडेड बाय x-4 की पावर 3। इफ इज इन द पावर 3, मेरा सिंपल ये फंक्शन लग जाएगा ये वाला। मैं इसको लिख सकती हूँ 3x+3 अपॉन x-4 पावर 3 माइनस 1:2, and then differentiate x+3 upon x-4। If you're looking at this, you know, अगर अब हमें only you have to differentiate this। अगर इसको differentiate करना है, it's an easy one। आपका क्वेश्चन रूल दिख रहा है इसके अंदर क्लियर। What I will do is I will write the same thing। ये तो मेरा ऐसे ही जाएगा स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए व्हाट वी विल डू इज, हमारा क्या कहते हैं क्वेश्चन रूल, जो भी आपके डिनोमिनेटर में है कीप इट एज इट इज, एंड देन डिफ्रेंशिएट द न्यूमरेटर। ठीक है, माइनस एंड देन इन द न्यूमरेटर एंड डिफ्रेंशिएट द डिनोमिनेटर। पूरे को डिवाइड करो किससे, जो भी डिनोमिनेटर में उसके स्क्वायर से। ठीक है, ये सॉल्व हो रहा है हमारा सिंपल। 3x+3 अपॉन x-4 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, ये तो मेरा x-4 रहा,
इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x को dx अपॉन डी, क्योंकि प्रोडक्ट रूल है, ओ सॉरी सम रूल है, प्लस का साइन है, इसको अलग करा इसको अलग किया तो ये 1 आ गया, 1 प्लस 0 तो 1 ही रहेगा, माइनस x प्लस 3, नाउ डिफरेंशिएटेड इट वुड बी 1 x माइनस 4 का होल स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट। अगर इसको सॉल्व कर रहे हो x माइनस 4 माइनस x माइनस 3, ये हमारा बन जाएगा, लिख लेती हूँ मैं दोबारा से, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 4 होल स्क्वायर, x माइनस 4 माइनस x माइनस 3, x minus 4 whole square. I think it's easy. Now, keep it as it is, x plus 3 upon x minus 4 whole square. It comes out to be minus 7 upon x minus 4 whole square. I can write it like this, minus 21 x plus 3 whole square, x minus 4, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर तो 4. दिस इज माय आंसर. एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके. few more questions से सपोज आपको y इज इक्वल टू, हम चेन रूल और ये दोनों रूल्स को मैं ये थोड़ा कंबाइन करके लेके चल रहे हैं, कोई कोई इस वाले क्वेश्चंस कोई वैसे. u बसो 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये फिर वही रूल है चेन रूल. dy अगर एग्जाम में अलग अलग गिवन है तो आपको निकाल लेना, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx. d अपॉन du में y है हमारा u² प्लस tu, डी अपॉन डी एक्स के अंदर हमें ये यू एक्स में चाहिए, तो x² प्लस 3x प्लस 4. अब इसको फिर से सॉल्व कर लो, ये यू के फॉर्म में है तो 2u प्लस 3, राइट. इट वाज अ 4x प्लस 3 कर गया, हाँ जी. अब मैंने 2 को u को, अब इस u को आई हैव टू प्लेस विद द वैल्यू 2x² प्लस 3x प्लस 4 प्लस 3, ये है, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4x प्लस 3. बस सॉल्व कर लो अब इसको. 4x² प्लस 6x प्लस 8 प्लस 3, 4x प्लस 3. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये तो टोटल करके 11 हो जाएगा. आई कैन से ये मेरा 11 है, 8 प्लस 3, ठीक है. अब इसको मल्टीप्लाई कर लो एंड सॉल्व इट, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा. नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन. 2x³ माइनस 5x², इसको ना सॉल्व जितना करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजी लगेगा. बस प्रैक्टिस की बात है. ये पावर 25 है. अब आप देखो, जो चीज पावर में आ रहा है पावर वाला रूल लगा लो, फॉर्मूला इजी है, ठीक है. कुछ नहीं करना, 25 बाहर लिखा, जो भी है 2x³ माइनस 5x² प्लस 7x प्लस 1, इसकी पावर 25 माइनस 1 इज 24, और डी बाई डी एक्स किसका कर रहे हो, जो भी हमारा फंक्शन है, 2x³ माइनस 5x² प्लस 7x प्लस 1. इसका आंसर आ गया 2x³ प्लस सॉरी माइनस 5x² प्लस 7x प्लस 1. इसका डिफरेंशिएट किया, 2 3 जो 6x² माइनस 5 जो 10x प्लस 7. सिंपल सॉल्व हो गया. अब इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो और लीव इट एज इट इज, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन. ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं. 39 हो गए हैं, 40. 2x प्लस 5 अपॉन 5x माइनस 7 पावर 4. अगर पावर 4 है, हम इसमें क्या करेंगे, फिर वैसे ही फंक्शन लगा लेंगे dy बाई डी एक्स के लिए. 4 2x प्लस 5 अपॉन 5x माइनस 7
पावर 4 - 1 इज 3, और डी वाई बाई डी एक्स किसका, इसका 2x + 5/5x - 7। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, इजी है ये, इसमें क्वेश्चन रूल लग जाएगा, क्वेश्चन रूल लगा के सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ, वी विल एबल टू सॉल्व इट। आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर आएगा -156 2x + 5 cube/5x - 7 ठीक है, जस्ट लाइक द सेम क्वेश्चन विच वी हैव डन इट अबव, बिल्कुल वही है। अभी हमारे 40 हो गया ना, 40 या 41। ठीक है, एक क्वेश्चन हम ऐसे ले लो, अगर हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, किसका निकालना है, 2x⁻5 - 5 स्क्वायर + 7 पावर 9, इसका 9 आ जाएगा। 2x⁻5 - 5x² + 7 पावर 8 dy बाई डी एक्स ऑफ 2x5 - 5x² + 7। अब बस सॉल्व हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर लो, ये तो ऐसे ही रहेगा। आई थिंक अभी तक तो डिफरेंशिएट करना अच्छे से आ जाना चाहिए। 5 × 2 = 10, एक बार प्रैक्टिस भी कर लेना। 4 - 5 × 10 x, सॉल्व कर लो, इसको यहाँ छोड़ दो या फिर इसको कर लो ऐसे, इधर कॉमन ले लो तो 10 आ गया, 10 इधर 90, एक्स भी ले लो, ये आ गया 2x5 - 5x² + 7 8, और इधर बचा है x⁻3 - 1, बस दिस इज द आंसर। चलिए एक रूल और कर लेते हैं, सिंपल रूल है जिसके बाद खत्म सही हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ logarithmic एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अगर हमारे डेरिवेटिव हम लॉगरिथम के एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में, ये बहुत सिंपल है। y अगर हमारा सपोज log x है, और हमें इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, इट वुड बी 1/x। y की, एक मिनट, हम ये कह सकते हैं d/dx इसका log x का वुड बी 1/x। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हमें, एक सेकेंड, ये मेरा आ जाता है d/dx e⁻x का एक्सपोनेंशियल के लिए, तब ही हमारा e⁻x होगा सेम। ठीक है, एक आप फंक्शन और देख लो, एक और आ जाता है कभी कभी आपसे, फंक्शन x इक्वल्स टू a⁻x, कोई कांस्टेंट है उसकी पावर x, और आपको d बाई डी एक्स निकालना है इसका, मीन्स आपको d बाई डी एक्स निकालना है a⁻x का। ठीक है, फंक्शन है एक, तो x जो है, जो इसका कंपेटिव निकालो वो पावर में आ गया। अगर ऐसा केस आता है तो ऑलवेज डू दिस a⁻x, और ये लॉग a हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, याद रखना, ये बेसिक्स हैं। आई थिंक इसकी है, एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं तो आपको, मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हो गया आप लोगों का। 42, मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, सपोज लॉग 5x² + 7 का। अब लॉग में है ना, अब जो भी पावर लॉग में आएगा तो फंक्शन उसका 1/x होना ही हमें मालूम है। अगर मैं डी वाई बाई एक्स का क्या होगा, 1/x² + 7, लेकिन चेन रूल कहता है अब इसका भी तो होना चाहिए डिफरेंशिएट, ये भी पावर में है, तो ये हो जाएगा d/dx 5x² + 7 1/+7, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, 5 × 2 = 10x। ठीक है जी, तो हमारा आंसर आ गया 10x/7।
5x² प्लस 7, सिंपल। क्योंकि ये इसका भी डिफ्रेंसिएशन होना है अलग से। लॉग एक्स का तो हमें पता है, लेकिन एक्स है जो अंदर है वो भी फंक्शन में। अगेन वी विल डू द डिफरेंशिएट हियर। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। e⁻2x² प्लस 3x प्लस 7, ठीक है। dy/dx इक्वल्स टू, इसी का dy/dx निकाल रहे हैं ना, तो हमारे ई के तो सेम रहेगा पावर, पता ही है, हमने यहाँ रूल में बताया। इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सेम, लेकिन इसके जो पावर में है अगेन इज रिक्वायर्ड टू बी डिफरेंशिएटेड, क्योंकि ये खाली एक्स नहीं है। 2x² प्लस 3x प्लस 7, चेन रूल से करोगे तो ये हो जाएगा इजीली। इसको यू रख के पुट करके, नहीं तो मैं सिंपल एक डायरेक्ट करने की हैबिट डलवा रही हूँ आपको। e⁻2x² प्लस 3x प्लस 7, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x प्लस 3, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। log 3x प्लस 7, थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम कल प्रैक्टिस कर लेंगे, अभी मैं इतना ही कर रही हूँ, लास्ट ये वाला। इसका डिफरेंशिएट करना है ना। अब ये देखो, ये आपको देख के पता चल रहा है ये दो टर्म्स बन रही हैं, एक ये और एक ये। अगर दो टर्म्स बन रही है वही मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारा क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट रूल लग गया। पहले x² को एज इट इज रखो, d/dx इसका सेकंड टर्म का, ठीक है, प्लस सेकंड टर्म को ऐसे ही रखो, और d/dx इसका फर्स्ट टर्म का, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये x² हो गया, इसको टर्म को करोगे अब आप। अब आप इस टर्म को समझने की कोशिश करो, लॉग है, लॉग का क्या आएगा, 1/3x प्लस 7, क्योंकि log x इज 1/x, तो 1 वॉट एवर द फंक्शन हमने करा, लेकिन ये फंक्शन फिर दोबारा है, तो हमें इसका फिर से निकालना पड़ेगा। 3x प्लस चेन रूल के हिसाब से, प्लस ये हमारा एज इट इज रहेगा, इसको कोई डिफरेंशिएट करना नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो ये मेरा 2x बन गया। सॉल्व कर लेते हैं, x², ये 1/3x प्लस 7, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3 प्लस ये log 3x प्लस 7, ये 2x। मेरा सिंपल सॉल्व हो गया, इसको ओपन कर लेती हूँ, तो मेरा आ गया 3x² अपॉन 3x प्लस 7 प्लस 2x log 3x प्लस 7 इज माई आंसर। ठीक है जी, इजी है। अब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, या टुमारो वी विल डू अ लिटिल बिट मोर प्रैक्टिस, ये कराएंगे, फिर इम्प्लिसिट और दो तीन चीजें और रह गए टॉपिक्स, वो कवर कर लेंगे। आई थिंक इज क्लियर। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।